Welcome to the Mlukta Academy. Myself Anil Kumar Skija. So today I will deliver lecture for class 9th and topic is triangles. Topic is triangles. So as we have already studied in the earlier classes about the triangles, but what we have to study here now, we will be studying about the two triangles, about their congruency. So if we talk of a triangle has got 6 parts, that is 3 sides and 3 angles. So if we talk of a congruent triangle, what is congruent first? If we talk about congruent line, so what is a congruent line? Two lines are congruent which are of equal length. And if we talk about the circle, two circles are congruent when they are of same radius. Likewise, if we want to see about the congruent square, congruent rectangles, their dimensions must be exactly same. So two objects are said to be congruent if they are identical. Not identical, they are exactly same. Similar is the case with the congruent triangles. So when we talk about congruent triangles, for example, two triangles are congruent, A, B, C and D, E, F. A, B, C, D, E, F. So these two are congruent means when we place ABC over DEF triangle, then they will appear as a single triangle. There will be no difference. So they will be so much identical in shape, they seems to be single triangle. So this is regarding when we talk about these triangles, if these two are congruent. So how do we mention them? We mention them like this symbol, ABC is congruent to DEF. So all the 6 elements are equal. That is, first angle this, angle A is equal to angle D, then second angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F. Then also about the sides, that is AB is equal to DE, that is this side will be equal to this side, BC is equal to EF and AC is equal to DF. That is, corresponding sides and corresponding angles are equal. So in short, we can write them as corresponding parts of congruent triangles. So these are known as corresponding parts of congruent triangle are equal. So they are always equal. So whenever we say that two triangles are congruent, then they will be equal. Now if we think there are 3 triangles, ABC is congruent to DEF and DEF triangle is congruent to PQR, then we can say that ABC is congruent to which triangle? It is congruent to PQR. Because these two are same, it means all 3 are same. Now what is the criteria for congruence of triangle? We have seen there that all the 6 elements
if all the 6 elements, that is 3 sides and 3 angles are equal, then the triangles are congruent. But we can also prove with the 3 elements. Now if 3 elements taken in proper order, they are equal, then we say that the triangles are also congruent. So these are some criteria or creations which we use to find the congruency of triangles. So what are those? So we will write for the criteria for congruency of triangles. So for that I will rub this part. Then next is criteria for congruency of triangles. So first is SSS, that is side, side, side. So what does this mean? If all the 3 sides of one triangle are same as the 3 sides of other triangle, corresponding sides are equal, then we say that the triangles are congruent by SSS rule. That is, corresponding sides of both triangles are equal. So we will do this by example. For example, this is triangle ABC, this is triangle DEF. So what will happen? AB will be equal to DE. These are in correspondence, means AB is not equal to EF, and BC is equal to EF, AC is equal to DEF. So why I have mentioned differently this with the single इसको एक लाइन से डिनोट किया, दैट इज ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ. अगर ये होगा तो क्या होगा? ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? डी ई एफ के. देन सेकंड जो है, सेकंड इसमें क्या है? एस ए एस. एस ए एस मीन्स साइड एंगल साइड, मीन्स दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल होना चाहिए इक्वल. अब एंगल कौन सा इक्वल होना चाहिए? तीनों में से कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन जो एंगल की बात हम कर रहे हैं वो अनक्लूडेड एंगल होना चाहिए जो दोनों की साइड्स में. तभी मैंने क्या लिखा है? एस एस ए नहीं लिखा, साइड साइड एंगल नहीं लिखा. दिस इज साइड एंगल साइड. जो साइड से वो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल के. फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास है, इसमें है ए बी सी और ये है डी ई एफ. फॉर एग्जांपल ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ. तब ये बी एंगल अगर इसके इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, then we say that ABC is congruent to triangle DEF by which rule? By rule, कौन सा रूल है ये? SAS, that is side angle side rule है. So इसमें 3 कंपोनेंट ही हमने लिए हैं जिसमें ये तीनों, ये क्रिएशन से हम बता सकते हैं ये these are congruent triangles. Then third is ASA. इसमें क्या है? एंगल, साइड और एंगल. सो अगेन वी कैन से दैट दिस इज ए बी सी, ये क्या है? डी ई एफ. इसमें क्या होगा? 2 एंगल होंगे और एक साइड होगी, दैट इज बी
इसमें अगर लेते हैं हम एंगल बी किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, ठीक है, और सी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, और ये साइड इसके बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए एस ए। अब इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो मॉडिफाई किस तरह से करेंगे, अगर हमारे यहाँ इसकी बजाय इसमें तो हम लिख सकते हैं दिस इज ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। सो इसकी मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, हम यहाँ पे करते हैं फोर्थ फॉर्म, ये है उसी तरह से ए बी सी डी ई एफ। इसमें हमारे पास बी और ई इक्वल हैं, ए और डी इक्वल हैं, और ये साइड इक्वल है, तो तब क्या होगा हम देखते हैं इसको। हमारा ये रूल क्या था, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड था, तब तो ये ऐसे ऐसे हो गया। अब इसमें क्या होगा, एंगल है, एंगल है, इधर भी एंगल है, ये एंगल है, और ये साइड बार वाली है, और होना क्या चाहिए, सी और एफ इक्वल होना चाहिए। क्या सी और एफ इक्वल होंगे या नहीं होंगे, यस दीज विल बी इक्वल। वाई, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा इसमें, तो इसमें वही रूल बन जाएगा ए एस ए, और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एंगल एंगल साइड रूल। सो दिस कैन आल्सो बी, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ए एस ए। अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड तो वैसे ही सेम हो जाएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ triangles, that is sum of the three angles of a triangle is 180 degree. So these will be equal. So these are the four creations which we use to make the triangles congruent. So now we will use these creations and we will do some questions. Then one more is there. So for that, right angle hypotenuse side. So we can say that is given by RHS, फिफ्थ है, that is right angle hypotenuse और एक साइड, ये तीनों इक्वल होंगे। एक जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, और ये है हमारे पास डी ई एफ, ये दोनों इक्वल होंगे किस रूल से, RHS से। ये तो हमारा एक राइट एंगल हो गया, ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू DF, और एक साइड कोई भी आइदर AB इज इक्वल टू DE हो या BC इज इक्वल टू EF, तभी इसको हम क्या कहते हैं, RHS। R तो ये हो गया, ये R है, ये H है, ये S है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। इसी तरह से ये भी राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये साइड हो गया। सो देयर आर 5 रूल्स विच वी यूज टू फॉर द एज अ क्रिएशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। सो दीज कैन बी समराइज्ड एज, इट कैन बी आइदर द 3 साइड्स आर इक्वल, 2 sides and included angle, or third is 2 angles and included side, or it can be modified to 2 angles and 1 side. Third angle will be automatically equal, and last of all is fifth is RHS, that is right angle hypotenuse and side. So now we will do some questions based upon this. So for this I will clean the board.
देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, हमें एक फिगर दी हुई है, ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और इसमें क्या दिया है, ओ ए और ओ बी इक्वल है और ओ सी और ओ डी इक्वल है। इसमें क्या दिया है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। तो हमने इसमें क्या करना है, ए और डी और बी और सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। टू प्रूव ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। सेकंड, ए डी पैरेलल टू बी सी। फर्स्ट तो ये करना है। सेकंड में क्या है, ए डी पैरेलल टू बी सी। अब हम प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, सो वी कैन डू दिस वेरी इजीली। वी आर गिवन टू एलिमेंट्स आर कॉमन गिवन इन दिस, मीन्स दीज आर इक्वल। ओ ए, दिस इज योर ओ, this side is equal to this side, and OD or OC are equal. So we can write here OA, ये प्रूफ है। फर्स्ट क्या है, OA is equal to OB। सेकंड में क्या है, OC is equal to OD। इन दोनों के लिए रीजन क्या है, गिवन है ये हमें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, AOD और BOC एंगल इक्वल है। AOD और BOC ये इक्वल है। ये कैसे इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स हमने किए थे लास्ट चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स में। व्हेन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर देयर, देन द vertically opposite angles are formed which are equal. So these are vertically opposite angles are equal. So from 1 and 2 and 3 we can say that triangle AOD is congruent to triangle BOC from 1, 2 and 3, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमने क्या प्रूव करना है, AD पैरेलल टू BC। तो उसमें क्या है, A और B इक्वल होंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B कैसे हो गए ये, बाय CPCT। CPCT का मैंने मतलब बताया था, क्या था CPCT का मतलब, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, ये A और C, A और B इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ये देखो A, यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। तो जब ये इक्वल है तो हम ये भी लिख सकते हैं AD इज पैरेलल टू BC। वाई, बिकॉज A एंड B आर अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स। Angles and are equal. So ये क्या है, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं, इक्वल है, इसलिए क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे। AD और BC पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है इसमें, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक फिगर दी हुई है हमें, इन ट्रायंगल ABC, AB और AC इक्वल हैं। ABC गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। सो इसमें एक P पॉइंट है, P
P is a point on AB and Q is a point on AC. AB पे एक पॉइंट है P और AC पे एक पॉइंट है Q, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देना है BQ और CP। सो इसमें हमने क्या प्रूव करना है, वी वांट टू प्रूव दैट AP और AQ इक्वल है, और साथ में क्या है AP इज इक्वल टू AQ। ठीक है, अब क्या करना है हमने इसमें प्रूफ, APC और AQB टू प्रूव ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APQ, AQB। और सेकेंडली हमें क्या प्रूव करना है, BPC और CQB, BPC और CQB, ये हमने प्रूव करना है। सो फर्स्ट वाला तो सीधे ही हो जाएगा, इसमें हमारे पास क्या है, हम इधर से चलते हैं। सो फर्स्ट हमें क्या दिया इधर, AB और AC इक्वल है इन ट्रायंगल्स, कौन कौन से, APC और AQB। AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। सेकंड क्या है, AP इज इक्वल टू AQ, ये भी गिवन है। और थर्ड में क्या आ जाएगा, एंगल A जो है वो दोनों साइड पे कॉमन है, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स। तो ये हमारा रीजन हो गया, ये स्टेटमेंट होगी। अब इन तीनों से हम क्या कह सकते हैं, एक तो ये साइड होगी, हमने कौन सा ये ट्रायंगल करना है और एक ये करना है, दो साइड होगी एक ट्रायंगल हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम 1, 2 and 3 यूजिंग SAS रूल। तो SAS रूल से हमने इसको प्रूव कर दिया। अब जब ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी सेम होंगे, दैट इज AP और AQ भी इक्वल होंगे। ये तो दिया है हमें AP और AQ आर इक्वल। अब हमें इन दोनों को 1 - 2 करेंगे तो क्या होगा, सेकंड पार्ट के लिए हम इधर करते हैं, फॉर सेकंड पार्ट हमें पता है 1 - 2 कर दो, AB माइनस AP इक्वल टू AC माइनस AQ। तो AB माइनस AP क्या आ जाएगा, BP, और दूसरा क्या आ जाएगा, CQ। एक तो ये साइड होगी इसके इक्वल, और इसमें हम क्या कह सकते हैं, CP और BQ भी इक्वल होंगे। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड क्या हो गया, CP इज इक्वल टू BQ। ये क्यों है, दिस इज बिकॉज बाय CPCT ऑफ ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल AQB। सो इन दोनों ट्रायंगल्स के CPC कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब दो साइड्स होंगी और हमारे पास BC दोनों में सेम है, BC इज इक्वल टू BC कॉमन। तो अब इन तीनों से क्या हो जाएगा, वी कैन से दैट, इसको 4, 5, 6 लिख दो। सो दिस विल बी फ्रॉम 4, 5, 6 वी हैव ट्रायंगल BPC congruent to triangle CQB by SSS rule।
तो अब हमने इसमें क्या किया, जस्ट लुक एट दीज स्टेप्स अगेन। फर्स्ट तो हमने क्या किया है, ए बी और ए सी इक्वल दिए हैं, ये हमें दिया हुआ है ए बी और ए सी, सो ये हमने पहला स्टेप वही ले लिया। दूसरा क्या है, पी और क्यू इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं सच दैट ए पी और ए क्यू इक्वल है, ए पी और ए क्यू को हमने इक्वल कर दिया, ये भी गिवन में आ गया। थर्ड, ये जो एंगल है दोनों में आ रहा है, हमने ये एंगल करना है पहले और साथ में ये वाला करना है। तो इसमें क्या हो गया, दो तो साइड्स होंगी, एक तो ए बी और ए सी होगी और ए पी और ए क्यू हो गया, तो साथ में एक एंगल हो गया। तो इसमें एस ए एस रूल से हमें क्या है, ये कॉन्ग्रुएंसी होगी हमारी। ओके, तो अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो जो दो पहले लाइंस हमने इक्वल दी है उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग वन माइनस टू। सो 1 और 2 में से माइनस किया है ए पी माइनस ए बी माइनस ए पी और ए सी माइनस ए क्यू, ये क्या आ जाएगा पी बी और ये हो जाएगा सी क्यू। और आगे सी पी और बी क्यू, सी पी और बी क्यू इक्वल हो गए, कहाँ से आगे ये इक्वल, ये आए हैं हमारे यहाँ से, सी पी और पी सी और क्यू बी, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स। और लास्ट वाला बी सी कॉमन है, अब तीनों से हम ये लिख सकते हैं बी पी सी और सी क्यू बी, दीज आर योर कॉन्ग्रुएंट, सो हैंस प्रूव्ड। यही हमने इसमें प्रूव करना था। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सो फर्स्ट वी विल रब दिस पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे, एक फिगर दी हुई है हमें, ए सी और ए ई इक्वल हैं इसमें। सो क्वेश्चन थर्ड है, ये हो गया ए ई, ये ए बी है, ये सी है, ये डी है। तो अब हमें दिया क्या है, ए सी और ए ई, ए सी ये दोनों इक्वल हैं, ए बी और ए डी, ए बी और ए डी ये भी दोनों इक्वल हैं। और साथ में क्या दिया है, बी ए डी, बी ए डी ये एंगल किसके इक्वल है, ई ए सी, ई ए सी ये दोनों इक्वल हैं। तो इसमें हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव बी सी और डी ई को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं पहले, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ये लेंगे हम ए डी ई, इसको ज्वाइन कर दो, ट्रायंगल ए डी ई। तो इसमें हमारे पास क्या है, पहले तो हमारे पास आ जाएगा ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन है। देन ए सी किसके इक्वल है, ए ई के, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये भी गिवन है। अब हमारे पास एंगल कौन सा इक्वल है, बी ए डी इक्वल टू सी ए ई,
तो इनमें हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल ऐड कर देते हैं दोनों में, DAC, एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड्स, वी गेट, तो क्या आ जाएगा इसमें, BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू DAC प्लस एंगल CAE। अब देखो BAD और DAC क्या बन गया, BAD तो ये है, DAC ये है, सारा क्या बन गया, BAC, BAC इज इक्वल टू, अब DAC और CAE क्या बन जाएगा, DAE, DAE। अब ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड हो गया। फ्रॉम 1, 2 and 3 we can write here as, तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABC और ADE। तो हमने, अब हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू DE। BC ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, so BC is equal to DE by CP CD। so ये हो जाएगा हमारा पार्ट जो हमने, ठीक है। so this clear your part। so today we have started with the new chapter, so go through these points, so we will do more questions on congruency of triangles। so thank you for today's lecture, thank you।